Today in the class we discuss about the employee training. Employee training, the syllabus of the unit 3rd is the human resource development, training process, training need analysis, training methods and evaluation training, designing training programs and delivery methods, training evaluation. Hence, this is emphasis on the training, on the employee training. The essential part of a company is employee training. If a person is specialized, then he do work very efficiently and with the high productivity. Hence, in this chapter, we will go for the employee training. In this case, you will study about the concept of the training, need for training, why the training is needed for an employee in an organization, the importance of the training, what is the significance of the training for an organization, what is the importance of the training, and what are the different types of the training, and identifying the training needs,
what are the different training needs are there, why we go for the training, and what are the objectives of the training, designing a training program, how to train the employee. You have to design a training program and methods and techniques of the training. What will be the different methods and techniques of the training, and evaluating training effectiveness, retraining, and training process outsourcing. Hence, these are the topics that we will discuss today about the employee training, concept of the training, need for training, importance of the training, types of the training, identifying training needs, objectives of the training, designing a training program, methods and techniques of the training, evaluating training effectiveness, retraining, training process outsourcing. So these are the topics that we will go for the employee training. The human resource development, human resource management in the recent years become the focus on attention on the planners, policymakers, and administrators. How the policy maker define the strategy for the humans, strategy for the employees, strategy for the persons which is employed there, what the administrators do in the company. These are the, in recent years, the focus of attention is given on the planners, policymakers, and the administrators. How the administrators do the with the human resources, the workers, the supervisors, the managers in the plant. है ना? And the process of increasing the knowledge, human resource development is the process of increasing the knowledge, skills, and capacities of the people. How the capacities of the people can be increased, how the knowledge can be increased, how the skills of the people can be increased. These increment in the knowledge, increment in the skills, increment in the capacity of the people will be helped with the help of the training. Hence, the human resource development is the part of the employee training. Hence, the education, training, and research is the integral part of the human resource development, human resource planning, human resource training in the case of an organization. Hence, the concept of the training is to increase the knowledge of the people, skill of the people, capacity of the people, so that the productivity of an employee can be increased. Hence, the policymakers, administrators have to design the training program for the employee. Hence, the concept of the training, definition of the training is given as follow. Training is the process of increasing the knowledge and skills for doing a particular job. किसी जॉब को करने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको ट्रेनिंग कहते हैं. किसी काम को करने के लिए स्किल्स बढ़ाए जाते हैं, नॉलेज बढ़ाए जाते हैं, उसको ट्रेनिंग कहते हैं. It is an organized procedure by which people learn knowledge and skill for a definite purpose. It is an organized procedure. Organized procedure है ये, जिसमें people जो है knowledge gain करता है for the definite purpose. The purpose of training is basically the bridging the gap between the job requirement and present competition of the employee. जो ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस है वो गैप को ब्रीच करना है ना.
गैप को ब्रीच करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द प्रेजेंट कंपटीशंस ऑफ द एम्प्लॉई, इसको जो है ब्रीच करना है। ट्रेनिंग इज एम्ड एट द इम्प्रूविंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। किसी भी आदमी का, किसी भी एम्प्लॉई का, किसी भी वर्कर का आपको जो ट्रेनिंग है वो आपको बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, वो आपको इंप्रूव करता है। तो यहां पर आपको कंपैरिजन दिखाया गया है बिटवीन एजुकेशन एंड बिटवीन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज द टू पार्ट। किसी को एजुकेशन दिया जाता है और किसी को एजुकेशन दिया जाता है, दोनों दो पार्ट हैं। एजुकेशन एक अलग है, हायर एजुकेशन गेन करना। ट्रेनिंग एक अलग पर्पस है, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स आता है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आता है, मशीन को चलाने की टेक्निक आती है। हाउ टू इंप्रूव दिस कैन बी गेन्ड बाय द एक्सपीरियंस। तो कंपैरिजन बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हियर विल यू गेट द, in the case of the content and scope, education is broad and general term। ये आपको ब्रॉड टर्म है, जनरल टर्म है। जो एजुकेशन दिया जाता है वो आपको फ्यूचरिस्टिक दिया जाता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसमें आपको जनरल टर्म में आपको एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग जो है आपको स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड है, आपको स्पेसिफिक मशीनरी रिलेटेड है, आपको स्पेसिफिक मशीन पे आपको चलाना सिखाया जाता है, वो नैरो है। आपको जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। एजुकेशन इज ए ब्रॉड टर्म, education is a general term which is given about the futuristic education। फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि what the human can do, बट द ट्रेनिंग में आपको स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी मशीन को चलाने दिया जाता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चलाने दिया जाता है, आपको ये आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। हाँ बोलिए। अटेंडेंस होगी सर मेरी 123 की। अटेंडेंस मैं एक बार ले लेता हूं और फिर दोबारा फिर लूंगा मैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन आपको आए हुए हैं। अटेंडेंस मैं बता देता हूं। गौरव गुप्ता जी आए हुए हैं 1113। अर्जुन देव जी आए हैं 104। हिमांशु जी आए हैं 1117। कुंदन जी आए हैं 163। नितेश जी आए हैं 123। पवन जी आए हैं 127। रजनीश कुशवाहा जी आए हैं 134। विशाल जी आए हैं 148। शुभम जी आए हैं 142। योगेश जी आए हैं 150। फ्रांसू जी आए हैं 112। अनुराग जी आए हैं 161। तो 12 पार्टिसिपेंट आए हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। शुभम जी 142, फ्रांसू जी 112, अनुराग जी 161, विशाल जी 148, रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, नितेश जी 123,
कुंदन कुमार जी 163, हिमांशु जी 117, गौरव गुप्ता जी 113, अर्जुन देव जी 104, अनुराग जी 161। ये आपके पार्टिसिपेंट्स आप आए हुए हैं। तो हम लोग जो अभी कर रहे थे वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें एडुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो नेचर में आपको जो एडुकेशन होता है प्योर एंड थ्योरेटिकल होता है। ये आपको थ्योरेटिकल होता है। जो भी कोई एडुकेशन होता है वो आपको थ्योरी समझाता है, न्यूटन्स थ्योरी समझाता है, डिफरेंट टाइप की थ्योरी आपको समझाता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो अप्लाइड होता है कि थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडुकेशन एंड द ट्रेनिंग। एक्सपेरिमेंटल होता है, अप्लाइड होता है कि भाई जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसका क्या काम है, उसको कहाँ एप्लीकेशन कराएंगे। और आपको एडुकेशन जो होता है प्योर थ्योरेटिकल होता है, आपको प्योर होता है, ये थ्योरेटिकल होता है। तो आपको एडुकेशन जो होता है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। दिस इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। एंड जो ट्रेनिंग होता है वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जो उसका आपको एडुकेशन का जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपको डिलेड रिजल्ट मिलता है। कोई भी एडुकेशन लेता है तो उसका जो है आपको डिलेड रिजल्ट मिलता है, इनएपरेंट रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो कोई ट्रेनिंग लेता है उसका क्विक रिजल्ट मिलता है, अपेरेंट रिजल्ट मिलता है। वो तुरंत मशीन चलाना सीख जाता है, फेमस चलाना सीख जाता है और कंपनी को हैंडल करने लगता है ना। तो ये आपको दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा है। एडुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में आपको डिफरेंस बता रहा है। एडुकेशन जनरली जो आपको दिया जाता है स्कूल में दिया जाता है, कॉलेज में दिया जाता है। और ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो वर्क प्लेस पे दिया जाता है, इंडस्ट्री में दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये दोनों के डिफरेंस बिटवीन एडुकेशन एंड ट्रेनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो एडुकेशन जो है आपको स्कूल में दिया जाता है, कॉलेज में दिया जाता है, और ट्रेनिंग आपको इंडस्ट्री में दिया जाता है, वर्क प्लेस में दिया जाता है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन एडुकेशन एंड द ट्रेनिंग। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द एडुकेशन। आपको जो ट्रेनिंग देता है वो आपको स्किल को बढ़ाता है, एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय को बढ़ाता है, और स्पेसिफिक जॉब को करने की क्षमता को आपको बढ़ाता है ना। तो ये आपको ट्रेनिंग का मतलब हुआ किसी काम को करने की क्षमता को बढ़ाता है, किसी काम की करने की जो है स्किल्स को देता है। वेयर इज द एडुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपनी और द एम्प्लॉय। एडुकेशन का मतलब है नॉलेज गेन करना, एडुकेशन का मतलब है नॉलेज गेन करना, जबकि ट्रेनिंग का मतलब है स्किल्स जनरेट करना, एबिलिटी जनरेट करना, एप्टीट्यूड जनरेट करना। Hence the education is on the wider scope, whereas the training is for the general scope. ट्रेनिंग इज द जॉब ओरिएंटेड होता है, ट्रेनिंग आपको जॉब ओरिएंटेड होता है। और ट्रेनिंग जो है आपको वोकेशनल दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। वेयर एजुकेशन इज द जनरल एंड मेजर बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट का जो है काम जो है एजुकेशन करना होता है। तो ये आपको एजुकेशन जो है पर्सन ओरिएंटेड है ना, कोई पर्सन आपको देता है। ट्रेनिंग जो है आपको जॉब ओरिएंटेड है, ये आपको जॉब की करने की क्षमता को, स्किल की करने की क्षमता को वो आपको बढ़ाता है। तो ये आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन जो है आपको थ्योरेटिकल होता है, प्योर होता है,
इट इज ए फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए होता है। और ट्रेनिंग जो होता है आपको जॉब स्पेसिफिक होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल है, ये अप्लाइड होता है कि भाई आपने क्या सीखा, ये क्विक एंड अपेरेंट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये आपको यहाँ पर आपको बता रहा है कि कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग देना आपको जरूरी है, विच इज द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड द प्रेजेंट कंपटीशन ऑफ एन एम्प्लॉय। बहुतों को एजुकेशन बहुत होता है, ट्रेनिंग नहीं रहता है, तो ये आपको क्विक एंड अपेरेंट आपको यहां पर आपको जरूरी है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको यहां पर कंपेयर करता है। ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस को बताया जाता है, और डेवलपमेंट में कंसेप्चुअल एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। ट्रेनिंग में नॉन मैनेजरियल पर्सनल रहते हैं, और इसमें आपको मैनेजरियल पर्सनल रहते हैं। डेवलपमेंट में आपको मैनेजरियल पर्सन रहते हैं। एक मैनेजर जो है डेवलपमेंट के बारे में बताता है, तो यहाँ पर आपको इसमें नॉन मैनेजरियल पर्सन रहते हैं। आपको सुपरवाइजर, आपको ट्रेंड स्पेशलिस्ट पर्सन आपको ट्रेनिंग देता है। इसमें टाइम पीरियड आपको शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। ये आपको यहां पर आपको डिफरेंस दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर्पस इसमें स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड होता है। किसी जॉब को जानने की जानकारी कैसे किया जाता है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट कैसे काम करता है, वो आपको ट्रेनिंग है। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, वो आपको डेवलपमेंट है। टोटल पर्सनालिटी आपको डेवलपमेंट करता है, वो आपको डेवलपमेंट है। और इनिशिएटिव फ्रॉम मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो आपको इनिशिएटिव है। और यहां पर आपको इंडिविजुअल हिमसेल्फ को इंटरनल मोटिवेशन होता है, ये आपको डेवलपमेंट है। नेचर ऑफ द प्रोसेस, ये आपको रिएक्टिव प्रोसेस है टू मीट द करंट नीड। ये आपको रिएक्टिव प्रोसेस है टू मीट द करंट नीड। क्या करंट नीड है उस पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी जैसे कोरोना का अभी जो है अभी नीड है आपको कोरोना के बारे में, तो सभी हॉस्पिटल्स में कोरोना के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उसके बारे में जो नीड है उसी के बारे में बताया जाता है। तो ये आपको कोरोना के बारे में हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग देना अभी ट्रेनिंग कहलाता है। डेवलपमेंट का मतलब है ये एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है टू मीट द फ्यूचर नीड्स। डेवलपमेंट का मतलब है फ्यूचर नीड्स में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में एजुकेशन देना, उसके बारे में आपको बताना। तो इसी के बारे में आपको डेवलपमेंट है। तो ये आपको इंटरनल मोटिवेशन से आता है डेवलपमेंट। इंटरनल मोटिवेशन किया जाता है, इंडिविजुअल हिमसेल्फ किया जाता है। इसमें इनिशिएटिव मैनेजमेंट से लिया जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन किया जाता है ना। तो इसमें जॉब रिलेटेड स्किल्स होता है, इसमें टोटल पर्सनालिटी गुरुजी अटेंडेंस लगा दो, गुरुजी अटेंडेंस लगा दो। 107 107 भरत शर्मा। भरत जी, हाँ, भरत शर्मा का अटेंडेंस लग गया। थैंक यू सर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको यही आपको अभी डिफिनेशन बताया जा रहा है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या आपको डिफरेंस है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोसेस यूटिलाइजिंग ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीड्यूर बाय विच द मैनेजरियल पर्सन आपको उसमें देगा, थ्योरेटिकल नॉलेज देगा फॉर जनरल पर्पस। ये आपको डेवलपमेंट है, पर्सन का डेवलपमेंट होगा। इट इन्वॉल्व्स फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। ये आपको फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को आपको डील करेगा।
It involves the border education and its purpose in the for the long term. लॉन्ग टर्म में आपको ये करेगा। और दूसरी तरफ ट्रेनिंग जो है आपको डिजाइंड होगा फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइंड होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेटेड सेट पर्पस दिया जाता है। ये आपको मशीनरी डेवलपमेंट के लिए सम पीसेस ऑफ द मशीनरी के बारे में बताया जाता है ट्रेनिंग में। ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस का एक छोटा सा रूप है। ट्रेनिंग में आपको मशीनरी में, फैक्ट्री में कैसे काम करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस है। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल को उसमें प्रेजेंट जॉब में सेटिस्फैक्ट्री करता है, जबकि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल एज ए फ्यूचर जॉब के लिए वो करता है। ये आपको यहाँ पर आपको क्लियर डिफिनेशन, आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है ट्रेनिंग कंटेंट्स, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, टाइम पीरियड, पर्पस, इनिशिएटिव, नेचर ऑफ द प्रोसेस क्या है ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो ये आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिस्टिंक्शन देता है। ये आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का डिस्टिंक्शन देता है। एजुकेशन में आपको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाता है। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिफरेंस को यहाँ पर आपको बताया गया है। ट्रेनिंग इज ए वोकेशनल, ये आपको वोकेशनल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एजुकेशन आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये आपको प्योर होता है और ये थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल बताया जाता है, इसमें थ्योरी बताई जाती है ना। ये आपको स्कूल और कॉलेजेस में होता है एजुकेशन, और ट्रेनिंग आपको वर्क प्लेस पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, वहां आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। सर हाँ बताइए। तो ये आपको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आपको फर्क है। दोनों का ट्रेनिंग में और एजुकेशन में किसी भी एम्प्लॉय को आपको डेवलप करने के लिए एजुकेशन भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। दोनों का आपको दोनों बोथ इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट में दोनों का योगदान आपको जरूरी है। एजुकेशन का भी योगदान जरूरी है, ट्रेनिंग का योगदान भी जरूरी है। एजुकेशन अगर आपको नहीं हुआ तो आप मैनेजरियल लेवल में आपका प्रमोशन जल्दी नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा वर्कर हो, कितना भी आप पूरा इंडस्ट्री संभाल लें, लेकिन आपको एजुकेशन जरूरी है, तभी आपका प्रमोशन होगा। तो एजुकेशन जरूरी है। दूसरा ट्रेनिंग भी आपको जरूरी है। ट्रेनिंग जो है आपको, हाँ बताइए सर। योगेश की अटेंडेंस लगा देना, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है, कट आ रही है 167। ठीक है। योगेश का भी आ रहा है और फिर योगेश 150 का भी आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। अटेंडेंस लगा देना सर इनकी। हाँ दोनों का अटेंडेंस मैंने लगा दिया। तो ये आपको ट्रेनिंग क्या चीज है, ये आपको यहाँ पर आपको डिफिनेशन बताया गया। ट्रेनिंग का क्यों जरूरी है, आपको पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर और प्लानर जो है उनका फोकस आपको ट्रेनिंग में रहना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी है, पॉलिसी मेकर है, उसका आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहां पर होगा वहां पर स्किल्स आपको बढ़ेगी, कैपेसिटी ऑफ द पीपुल बढ़ेगी, और एंटरप्राइज लेवल पे आपको डेवलपमेंट होगा। तो ये चीजें आपको बताई जा रही है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या फर्क है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, यहां पर ये बताया गया है ना। दूसरा, नीड फॉर ट्रेनिंग क्यों जरूरत है, व्हाई द ट्रेनिंग इज नीडेड। अब ये आ गया कि भाई ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो जॉब रिक्वायरमेंट को करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब को करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, किसी स्पेसिफिक जॉब को आप ठीक ढंग से आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी क्वालिफिकेशन ले दें, लेकिन आपको जॉब में इफेक्टिवली आपको काम करना
है ना। तो आपको ये जॉब रिक्वायरमेंट है, नीड फॉर द ट्रेनिंग। न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय रिक्वायर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। जॉब में आपको इफेक्टिव परफॉर्मेंस करना आपको इंडस्ट्री में जरूरी है। द पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सनल माइट बी इनअप्रोप्रिएट। जो पहले का एक्सपीरियंस है, बिहेवियर है, नॉलेज है, जब तक कि आप इनअप्रोप्रिएट टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में नई इंडस्ट्री मिलती है, नया मशीनरी मिलता है, नया सेटअप मिलता है, तो आपको ये जरूरी है, जॉब रिक्वायरमेंट आपको जरूरी है। न्यू एम्प्लॉय नीड टू बी प्रोवाइडेड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। न्यू एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हर एक इंडस्ट्री में आपको दिया जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको दिया जाता है, आपको 1 साल तक आपको ओरिएंटेशन में रखा जाता है, जिससे कि वो हर एक इंडस्ट्री का हर एक चीज को वो देख ले, बारीकी से देख ले, बारीकी से सीख ले। तो ये जॉब रिक्वायरमेंट है। जॉब आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। अच्छा, जब तक कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक जो है आप जो है जॉब रिक्वायरमेंट जो है आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। न्यू ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन आपको इंक्रीजिंगली जो है आपको सभी जगह जा रहा है, सर्विस सेक्टर में जा रहा है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फास्ट चेंजिंग टेक्निक रिक्वायर्स ट्रेनिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर गया है तो उसमें ट्रेनिंग करने की आपको जरूरत है, आपको चेंजिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत है ना। स्टाफ इन द पब्लिक सेक्टर बैंक बीइंग ट्रेन्ड ड्यू टू द कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन सभी जगह बैंक में हो गया, आपको सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉय को कंप्यूटर पे आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है, तभी वो आपको काम कर पाएगा। कंप्यूटराइजेशन हो गया है, ऑटोमेशन हो गया है। जब तक कि पब्लिक सेक्टर बैंक को एम्प्लॉय को कंप्यूटर पे ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया जाता, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया नहीं जाता, तो तब तक वो आपको काम नहीं कर पाएगा। तो ये आपको टेक्नोलॉजिकल चेंज है। टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है आपको हर एक जॉब में होता रहता है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको उसको बताना आपको जरूरी है। न्यू जॉब जाने के बाद नई स्किल्स को आपको डेवलप पड़ता है। Hence the both new and old employee require training। दोनों जो है न्यू और ओल्ड एम्प्लॉई आपको ट्रेनिंग का आपको जरूरत है। तो ये आपको why the training is needed। तीसरा कारण है ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए चेंजिंग इन्वायरमेंट में कंपटीशन बढ़ गया है, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो इसके कारण जो है आपको हर एक एम्प्लॉय को आपको ग्रोथ जरूरी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, बिजनेस फर्म का एक्सपेंशन जरूरी है। तो जब तक आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे, आप ग्रोथ नहीं करेंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा जैसा ही, कुएं का मेढक जैसा आपका कुआं बन के रह जाएगा। आप जब तक एक्सपेंशन नहीं करेंगे, कंपनी को यूनिट को 1 यूनिट से 2 यूनिट नहीं बनाएंगे, 2 यूनिट से 3 यूनिट नहीं बनाएंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन राइज नहीं करेगा। आप एक ही से छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कि आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, डाइवर्सिफाई नहीं करेगा। तो दिस इज द एज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण कई इंडस्ट्री जो है आपका बंद हो गया, बाहर से सामान आते रहे, और जो है कंपनियों ने आउटसोर्सिंग करना सीख लिया। आउटसोर्सिंग करना ही बेहतर विकल्प जो है इंडिया में अपना लिया, जिसके चलते कई कंपनियां जो है हाउसमेड कंपनियां आपकी बंद हो गई। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना, न्यू नॉलेज के बारे में रखना,
तो ये आपको बहुत जरूरी है, ये ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी के लिए आपको जरूरी है। चौथा कारण है इंटरनल मोबिलिटी। जब जो है एक एम्प्लॉई एक जॉब से दूसरे जॉब में जाता है, उसका प्रमोशन होता है, उसका ट्रांसफर होता है ना, तो वो हायर लेवल में जाता है, तो आपको एम्प्लॉई मूव करता है, फ्रॉम द हायर लेवल जॉब टू द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है, उसका प्रमोशन होता है, उसका ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए आपको जो है आपको ट्रेनिंग देना आपको जरूरी है। तो दिस इज द प्रेजेंट नीड फॉर ट्रेनिंग द पीपल ऑफ द न्यू चेंज टेक्निक may be taken to advantage of the improved old methods, है ना, growing complexity of the job, increasing professionalism, growing uncertainty in the environment आपको अनसर्टन है, ग्लोबल कंपटीशन आ गया है, ग्रोइंग एस्पायरेशन आ गया है, वास्ट अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल आ गया है, इवर इंक्रीजिंग गैप आ गया है। तो ये इसके लिए इंटरनल मोबिलिटी आपको जरूरी है, मोबाइल होना आपको जरूरी है। आदमी मोबाइल होता रहता है, उसका ट्रांसफर होता रहता है, उसका प्रमोशन होता रहता है, इसीलिए एक जॉब से दूसरे जॉब में जाता है, और कई जॉब का आपको गैप जो आता है इसको दूर करने के लिए आपको ट्रेनिंग का जरूरत है। तो व्हाई वी नीड द ट्रेनिंग, इसके 4 कारण आपको, ठोस कारण है। जॉब रिक्वायरमेंट, आप बिना ट्रेनिंग के जॉब सेटिस्फैक्टरली इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। किसी जॉब को करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, इन हैंड ट्रेनिंग देना वो आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी आपको चेंजिंग वेरी फास्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये जो है आपको तेजी से हो रहा है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन को, एडवांटेज को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेने के लिए वेल ट्रेंड पर्सन चाहिए, और वेल ट्रेंड पर्सन जो है तो जानने के लिए आपको न्यू जॉब रिक्वायर की स्किल चाहिए, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए मस्ट अडॉप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। वर्ल्ड में क्या चेंज हो रहा है उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल कंपटीशन से आपको फेस करना पड़ता है। तो न्यू एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय को जो आपको न्यू ट्रेंड आपको मार्केट में आता जाता है आप उसको करते जाइए, नहीं तो जो है आपका कंपनी आपको सरवाइव नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये आपको जरूरी है ना। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये देना बहुत जरूरी है, आपको नीड है। इंटरनल मोबिलिटी होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहता है, एक दिन उसका प्रमोशन होता रहता है, एम्प्लॉय को हायर लेवल जॉब्स में आपको मिल जाता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको जो है आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब, इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म ऑफ द जॉब, ग्रोइंग अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट, ग्लोबल कंपटीशन है, ग्रोइंग एस्पायरेशन है, वास्ट अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल है, इवर इंक्रीजिंग गैप है बिटवीन प्लान्स। तो इसके लिए आपको इंटरनल मोबिलिटी के लिए आपको ट्रेनिंग की आपको जरूरत है। तो ये जो है आपको नीड ऑफ द ट्रेनिंग, आपको ये नीड फॉर द ट्रेनिंग था, क्यों आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको कंक्लूजन बताया गया, व्हाट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ पहले मैं आपको अटेंडेंस फिर से दोबारा मैं आपको बता दूं, किसी का आपको अटेंडेंस तो नहीं रह गया। आकाश गुज्जर जी 102, अनुराग जी 161, अर्जुन देव जी 104, फ्रांसू जी 112, कुंदन जी 163,
नितेश जी 123, पवन जी 127, अतुल दीक्षित जी 106, भरत शर्मा जी 107, हिमांशु जी 117, निखिल जी 122, है ना। 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। 11 पार्टिसिपेंट्स का नाम फिर से मैं आपको बता देता हूं। निखिल जी 122, हिमांशु जी 117, भरत शर्मा जी 107, अतुल दीक्षित जी 106, पवन जी 127, नितेश जी 123, कुंदन कुमार जी 163, फ्रांसु जी 112, अर्जुन देव जी 104, अनुराग जी 161, आकाश गुज्जर जी 102. तो today we have gone about the employee training. Employee training क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्या होता है ना, उसका डिफिनेशंस के बारे में, एजुकेशन और ट्रेनिंग के बीच में आपको अंतर क्या है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों लेना आपको एम्प्लॉय को जरूरी है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट एंड ह्यूमन पोटेंशियल। दोनों आपको ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करता है, इसीलिए एजुकेशन भी लेना जरूरी है और ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है ना। तो वर्क प्लेस में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और फॉर्मल एजुकेशन आपको स्कूल और कॉलेजेज में आपको एजुकेशन दिया जाता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग में आपको क्या फर्क है, आपका एप्टीट्यूड, आपका स्किल्स, आपका एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय आपको बिना ट्रेनिंग प्रोसेस के आपको नहीं आएगा। इसीलिए एजुकेशन से आपको जनरल नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय आता है ना। तो एजुकेशन इज मोर स्कोप देन द ट्रेनिंग। एजुकेशन जो है वाइडर स्कोप है, और ट्रेनिंग आपको जो है आपको शॉर्ट टर्म में आता है। ये आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, ये आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल होता है, ये आप